Hello students, good morning all of you. I hope you are all fine, okay, and you are following the COVID-19 instructions. In every video there is on screen you can see before starting every video, okay. हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन पे COVID-19 के इंस्ट्रक्शन सिर्फ देखने के लिए नहीं दिए जाते हैं, आपको फॉलो करना है अपनी फैमिली मेंबर्स को भी फॉलो करवाना है, ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. Now dear students, we are going to continue the chapter that is that is nutrition in animals. Okay, so हमने डाइजेशन पढ़ा था ह्यूमन बींग्स में, ठीक है. सो ह्यूमन बींग्स में जो भी हमने डाइजेशन पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन था वो क्या था, यानी कि जो न्यूट्रिशन लेने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है. वो तो भाई होलोजोइक होता है जिसमें आपके सारे स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है. तो हमने पढ़ा कि इंजेशन कैसे करते हैं, यानी कि फूड को इनटेक करना, यानी अपने हाथ से फूड को बॉडी में रखना, यानी कि माउथ के थ्रू. सो इंजेशन कर लिया, फूड इनटेक कर लिया. नाउ डाइजेशन क्या हुआ कि माउथ में आने यानी माउथ में आते ही फूड डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. और टीथ एंड टंग हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन, उसको कटिंग एंड टीयरिंग में हेल्प करते हैं. एंड जो माउथ में आपका सलाइवा होता है वो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि अगर हमने फूड में कार्बोहाइड्रेट लिया है सो उसको स्टार्च, बेसिकली स्टार्च हम लेते हैं फूड में, तो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, ठीक है. नाउ फूड गोज थ्रू द कि इसोफेगस, ठीक है. हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स में. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या थे कि एलिमेंट्री कैनल एंड आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स थे. तो एलिमेंट्री कैनल्स में सारे ऑर्गन्स हैं और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में ये सारे पार्ट्स थे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के, ओके. सो फूड आपका माउथ में गया नहीं, बक्कल कैविटी में गया, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, इसोफेगस में. सो इसोफेगस से होते हुए फूड गोज इनटू स्टमक वेयर इट डाइजेस्ट बाय देयर गैस्ट्रिक जूस, ठीक है. तो स्टमक वॉल सीक्रेट्स स्टमक वॉल्स हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस. Gastric juice contain HCl, pepsin and mucus. HCl helps in the killing of bacteria if we take with the food, and mucus moistures the food and also protects the stomach from the HCl. And third one is pepsin enzyme. Pepsin enzymes helps in the digestion of protein if we taking the food. Okay. Now this after that कि food rest in stomach food about 3 to 4 hours. Okay, I think maximum 4 hours, ठीक है. So after digestion in stomach, food goes into small intestine where the bile juice comes from liver and pancreatic juice comes from pancreas in the small intestine, and here is the food is completely digested. Whatever कि food is proteins, carbohydrates and fats, digestion, okay, कितना भी बचा होता है that all is completed in small intestine. So where fat is digested into fatty acid and glycerol, carbohydrate is digested into glucose, and proteins are digested into amino acids. So totally digestion हो चुका है now, and food is absorbed here also in the small intestine because the small intestine is very long. Food is digested by diffusion process, and the small intestine have minute finger-like projections called as villi. Villi helps in the very fast absorption. It increases the surface area and it absorbs food very fast. That is 5 times faster than the normal absorption, by diffusion. अगर आप diffusion के process से ही अगर slow absorb कर रहे हैं उससे 5 गुना ज्यादा ये villi help करता है absorption में. Now all nutrients and water is absorbed here. Now undigested food, that is not necessary for the body, is removed out from the body. So now undigested food goes into large intestine where water and minerals absorbed. Now undigested food collected in the rectum, okay, and when it pushed by the body, it removed from the body by the anus. This process is called as egestion, okay. So I think it is revised. Now आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमने ह्यूमन बींग्स का देख लिया. नाउ इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में भी सेम ही प्रोसेस होता है, बस देयर इज अ माइन्यूट मतलब एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है. एनिमल में भी डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा ही होता है, हर पार्ट्स वैसे ही होते हैं, ग्लैंड्स भी वही होती हैं, बट एक चीज का डिफरेंस होता है, ठीक है.
जैसे कि काऊ, बुफेलो, हॉर्स, गोट, ये सारे अगर आप एनिमल्स को देखेंगे तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ह्यूमन बींग्स के जैसा ही होता है, बट एक ही डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या होता है कि जो ये एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज रूमिनेंट्स। उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव रूमेन इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो उनकी बॉडी में क्या होता है कि एक रूमेन होता है, ठीक है। और रूमेन क्या होता है? रूमेन जो आपका होता है उससे उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। होता क्या है कि इनका जो स्टोमक होता है, इनके स्टोमक में पार्ट्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं इनके स्टोमक में। और उसके पहले जो है आपका एक पार्ट, स्टोमक के जस्ट पहले एक थोड़ा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रूमेन। तो आपने देखा होगा कि जो ग्रास के एनिमल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी फूड लेते रहते हैं, यानी कि ग्रास खा रहे तो चबा चबा के खाते रहते हैं, तो वो जल्दी जल्दी जो फूड लेते हैं वो उनके रूमेन में स्टोर हो जाता है। दिस अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जल्दी जल्दी खा रहे हैं तो बिना डाइजेशन के फूड जो है आपका रूमेन में स्टोर हो जाता है। तो द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर इन रूमेन व्हेन दे आर की सिटिंग, वो बैठे हुए हैं। सो आप देखोगे कि वो अपना मुंह चलाते रहते हैं, ठीक है, वो अपने माउथ को ऐसे ऐसे करते रहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज रूमिनेशन, ठीक है। तो जब कभी वो बैठे रहते हैं, रूमिनेंट्स स्टॉप फीडिंग, खा चुके होते हैं और बैठे होते हैं, तो उनके बकल कैविटी में जो है आपका वही फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो उनके माउथ में आता रहता है, उसको कट बोलते हैं। तो वो जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, तो वो उनके माउथ में आता रहता है और उसको कट बोलते हैं। तो वो फिर उसको चबाते रहते हैं, उसको च्यू करते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि वो बैठ के ऐसे करते रहते हैं, नहीं भी खाते हैं फिर भी बैठ के अपना मुंह चलाते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं और एनिमल्स को रूमिनेंट्स बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर रूमेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो जो ग्रासेस है, जो पत्तियां हैं, लीव्स वगैरह खाते हैं, तो यू नो कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि प्लांट में सेलुलोज नाम का केमिकल होता है, ठीक है। वो केमिकल को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, वो डाइजेस्ट करने के लिए उनके स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में आपका एक स्पेशल टाइप का वो होता है। ओके, सो दीज एनिमल्स, ओके, सो वो क्या करते हैं कि वो सेलुलोज लेते हैं, यानी कि प्लांट में आपका सेलुलोज होता है, और उन सेलुलोज को पचाने के लिए उनके पास बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि जो उनके स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के पास एक जंक्शन होता है जिसको सीकम बोलते हैं, ठीक है। तो वो सीकम के अंदर स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ओके। So that's why animals can eat grasses, we cannot, because we don't have these type of bacteria. हमारे बॉडी में भी वो पार्ट होता है, सीकम होता है, बट सीकम जो होगा वो यूजलेस होता है, उसका कोई काम नहीं होता है, वो बहुत ही छोटे साइज का होता है। बट वहीं आपके जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनमें सीकम बड़ा होता है, उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ओके, क्लियर ना। इसी वजह से जो है वो ग्रासेस को खा सकते हैं ना। देयर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया है कि न्यूट्रिशन जो है वो आपके एनिमल्स में होता है। न्यूट्रिशन में क्या करते हैं? फूड लेते हैं, और फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है? फूड तो हमने आपका जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्व कर लिया न्यूट्रिएंट्स को, तो फूड को जब हमने एब्जॉर्व किया तो वो फूड कहाँ जाता है? आपके ब्लड में जाता है, ठीक है, और वो ब्लड के जरिए जो है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। So absorbed food is, you know, ki transport in your body by the circulatory system, and energy is absorbed or released by the process of respiration. So इसके साथ साथ 2 स्टेप और होते हैं, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। सो जो फूड हमने एब्जॉर्व किया है वो सर्कुलेशन यानी कि ब्लड ट्रांसपोर्ट के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाएगा, ईच एंड एवरी सेल्स को प्रोवाइड किया जाता है, वो फूड हर सेल में पहुंच गया, ठीक है। नाउ रेस्पिरेशन, अब हमें क्या करना है? उस फूड से एनर्जी लेना है। तो वो फूड से एनर्जी मिलेगी कैसे?
बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ही फूड से एनर्जी निकाल लेते हैं। वो छोटे एनिमल्स होते हैं, बहुत ही माइन्यूट, यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल्स कुछ होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज वगैरह, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। लेकिन जो बिग एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स भी हैं उनमें, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करके जो फूड उनके सेल्स में पहुंचा होता है, जो डाइजेस्टेड फूड पहुंचा होता है, उसको क्या करते हैं, उससे ऑक्सीजन की हेल्प से उसको ब्रेक करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। एंड यू नो कि व्हाट टाइप ऑफ फूड इज एनर्जी गिविंग। सो कार्बोहाइड्रेट अगर हमने फूड में लिया हुआ है तो वो हमें एनर्जी देता है। इसलिए कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट में ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे एनर्जी मिल रही होती है। कार्बोहाइड्रेट आपका जो है अल्टीमेटली ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिलती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस चैप्टर इज क्लियर। ओके नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ओके